So what we did in the last class? Neha, yes, lower Paleolithic. So in the entire class, what we discussed about? The history of division, the various facts on the basis of, or the various differences on the basis of the history was categorized, right? So sources of constructing history. So what are the various sources? Category of sources. Okay, literary sources and archaeological sources. And through these sources, how did we construct the history? We again divided the history into three parts: ancient, medieval, and modern. So we are now discussing ancient India, and ancient India has various periods, right, on the basis of the sources available. So on the basis of sources available, when we talk about the sources, it means archaeological sources and literary sources. So which periods are typically based upon the archaeological sources only? They are the prehistoric period, right, and proto also called. Why? Because we did not decipher the language, right? So proto period includes IVC and the a little part of Vedic age. Okay? And when we talk about the prehistoric period, it includes the Stone Age and Chalcolithic period. It means the metal age. ठीक है, तो ऐसे start हुआ कि Stone Age, Copper Age, Bronze Age. Though this is a dispute between the historians and geographers regarding the periods which came earlier. I mean, was it Chalcolithic or हड़प्पन. ठीक है, अब देखो यहाँ पे थोड़ा समझ लेना कि क्या है इशू. हड़प्पन IVC period time span largely believed by the historians is 2500 BC onwards, right? Sorry, 2500 BC onwards. So approximately 1000 BC, right? And the earliest evidence of Chalcolithic period we found around 3000 BC. Later up to approximately 500 BC. Are you getting that? So Chalcolithic कल्चर, जो कल्चर था उसकी सिमिलरिटी, यस प्लीज प्लीज. सो जो सिमिलरिटी थी जो हमको 3000 BC में मिली वो ऑलमोस्ट 500 BC तक मिली. तो हमने टाइम स्पैन बनाया. व्हाट द टाइम स्पैन वाज 3000 BC टू 500 BC. सो दैट इज व्हाई इट इज सेड दैट सो largely the larger sites, number of sites we found at the mature हड़प्पन पीरियड. ठीक है, एंड लेटर ऑन. ठीक है, हालांकि जो अर्लीस्ट पीरियड है वो हड़प्पन से पहले का था. तो इसलिए कह सकते हैं चालकोलिथिक पीरियड स्टार्ट्स बिफोर आईवीसी एंड स्पैन लास्ट टू आफ्टर आईवीसी. आई गेटिंग दैट? सो ये पूरा स्पैन, तो कई बार ऐसा होगा कि बुक में आप देखोगे कि टाइम स्पैन आईवीसी को पहले डिस्कस किया गया, चालकोलिथिक को बाद में डिस्कस किया. ठीक है, तो दैट इज व्हाट, बट we should understand that now we are talking about the culture where we do not have any story or the culture of the people, how they were living actually. तो चालकोलिथिक में हमें इतना ज्यादा डिटेल्स नहीं मिली है. we did not get the find of the such details which we have in the IBC period. ठीक है, तो IBC period से कम डिटेल है, इसलिए चालकोलिथिक. because when we talk about the cultural development, it means we should have more information regarding the developments. Are you getting that? It does not mean that we have more information regarding the Mughal period and we have less information regarding the British period, or we have more information of the Gupta period and we have very less information about the Delhi Sultanate. ठीक है, that is not development. Development is progressive change. It's not change. कई बार कहते हैं ना कि development means change. So when things are deteriorating or not developing, it does not mean development. It is just change, negative change. Development is a positive connotation. So when we talk about the development of the human civilization, it means some things, some skills are being added to their social aspect, political aspect, economical aspect. Are you getting that? Yes, please. So that is why these are the disputes regarding the time period. So Chalcolithic is the period when we have first we have the finding of the sites where we find metals. ठीक है, तो पहले जो stone age, the stone age deals with the stones only. In the stone age up to Neolithic period, or when we say the Neolithic period or the Mesolithic period, so it does not mean that so later Neolithic period, when Neolithic was getting at the verge of the end, ठीक है, तो हमको क्या मिले, मेटल्स मिलने स्टार्ट हो गए. ठीक है, तो जैसे पॉटरी का बताया, जैसे एनिमल डोमेस्टिकेशन, एग्रीकल्चर, तो व्हेन यू आर आस्क्ड अबाउट द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ पॉटरी, तो वो हमें कहां मिलेगा? पेलियोलिथिक लास्ट में, है ना, बिल्कुल लास्ट. लेकिन
pottery was introduced at the wide level. Pottery was introduced in the Mesolithic period. ऐसा माना जाता है। अर्लीस्ट एविडेंस हमको मिले क्योंकि स्टार्ट हो चुका था। आर यू गेटिंग दैट? बिल्कुल वैसे ही न्यूलिथिक के बिल्कुल लास्ट में मेटल का फर्स्ट जो प्रेवलेंस साइट्स है वो कब मिली हमको? चाल्कोलिथिक पीरियड में। लेकिन जो अर्लीस्ट एविडेंसेस हैं वो नियोलिथिक के लास्ट में स्टार्ट हो चुके थे। ठीक है, तो इस तरीके से, बिकॉज ट्रांजिशन पीरियड इज नॉट अ ईयर और मंथ, इट्स a span of number of years, thousands of years, क्योंकि हमें नहीं पता, बिकॉज डेटिंग इज नॉट एक्चुअली बेस्ड अपॉन द एग्जैक्ट ईयर, दैट स्पैन्स अराउंड अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, सो डेटिंग इज द टू टाइप्स ऑफ डेटिंग, दैट डेटिंग इज बेस्ड अपॉन द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में बेस्ड होती है वो लार्जली कार्बन डेटिंग होती है, बिकॉज कार्बन आइसोटोप वी हैव इन लिविंग ऑर्गेनिज्म बॉडी कंपोज्ड ऑफ द आइसोटोप्स ऑफ कार्बन, कार्बन 14। तो क्या है वो, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इट द अमाउंट ऑफ कार्बन 14 डिक्लाइंस। ठीक है, तो डिके होता है, तो रेडियोएक्टिव एलिमेंट पढ़े होंगे कभी साइंस में। ठीक है, तो डिके होते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो अभी क्या है, जो जब व्हेन वी आर लिविंग वी आर नॉट डेड, इन दैट केस कार्बन इज बीइंग बैलेंस्ड थ्रू द एटमॉस्फेयर। हम जिंदा हैं तो जितना डिके हो रहा है उतना हम कहां से ले रहे हैं? एटमॉस्फेयर से ले रहे हैं कार्बन। आर यू गेटिंग दैट? सो कार्बन जितना डिके हुआ हमने कहां से लिया? एटमॉस्फेयर से लिया। बट व्हेन वी आर डेड वी आर नॉट टेकिंग कार्बन फ्रॉम एटमॉस्फेयर। तो जब डेटिंग करते हैं तो चेक करते हैं द अमाउंट ऑफ कार्बन आइसोटोप, कार्बन 14 का अमाउंट कितना है, क्या वो डिके हुआ? तो जितना डिके हुआ उसके अकॉर्डिंग, यानी कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इट हाफ्स इटसेल्फ, यानी कि अभी जितना 100 है तो कितना होगा 50, फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 50 से कितना हुआ 25, फिर 12.5, तो ऐसे करते करते डिके होता है। लेकिन 40 से 50,000, 40 to 50,000 ईयर्स के बाद क्या होता है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट द एज, तो उसको एक नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह हम डील करते हैं। और फिर यूरेनियम और अदर काइंड ऑफ कार्बन डेटिंग वी यूज फॉर दैट नॉन लिविंग एलिमेंट, तो उसके बेसिस पे एज निकालते हैं। तो जो एज ग्रुप आता है दैट स्पैन्स अराउंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, दैट इज व्हाई वी डू नॉट हैव एग्जैक्ट ईयर ऑफ डेटिंग। बात समझ में आ रही? और एक्चुअली में जो सिविलाइजेशन, जो अर्ली सिविलाइजेशन थी वो ऐसे धीरे धीरे बहुत डेवलप हुई है ना। तो हाँ, जैसे हमारे हम एग्जैक्टली ईयर नहीं बता सकते ना अपने कि हम टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इंडिया में कभी स्टार्ट हुआ, या एलपीजी एग्जैक्टली रिफॉर्म लाए गए, लेकिन एलपीजी रिफॉर्म को प्रैक्टिस करना हमने कब स्टार्ट किया एग्जैक्टली वी कैन नॉट से। ठीक है, तो हमने जब बात करेंगे न्यू टेक्नोलॉजी विद रिस्पेक्ट टू द कंप्यूटर्स, तो लैपटॉप एग्जैक्ट किस ईयर में इंट्रोड्यूस हुआ नहीं कह सकते, क्योंकि इंट्रोड्यूस हुआ बट दैट वाज नॉट अंडर द लार्जर प्रैक्टिसेस बाय द पीपल, so that spans around the years. That is why we do not have exact year. You will find multiple sources with multiple time periods. ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस होगा 500, 100 year, 1000 years का, लेकिन that's approximately। ठीक है, and you will not be asked about the year in the examination, so don't worry about that। ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखना कि do not get worried about कि ये ईयर क्या होगा, ईयर में उलझे मत रहना, that's not the fact, क्योंकि अलग अलग बुक में अलग अलग मिलेगा। ठीक है, so we were doing, so now we in the last class we were doing the Stone Age, and the Stone Age the part we were doing the Paleolithic period. So under the Paleolithic period, देखो जब कल बताया था कि Paleolithic period, Mesolithic period और Neolithic, इन तीनों के बीच लार्जर बेसिस क्या था डिफरेंसेस का, क्या किस बेसिस पे कैटेगराइज किए गए थे लार्जली? हाँ, कल्चर तो था और साथ में क्लाइमेटिक बेसिस पे, है ना, बिकॉज हाँ यस दैट आइस एज वाज डिक्लाइनिंग। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू द टेम्परेचर, तो टेम्परेचर क्या बढ़ रहा था, तो जो कूलिंग है वो डिक्लाइन कर रही थी। ठीक है, तो वार्मर होती जा रही थी। तो जो पेलियोलिथिक से नियोलिथिक में जाएंगे तो दैट ट्रांजिशन पीरियड इज कॉल्ड एज मेसोलिथिक। ठीक है, और जब हमने पेलियोलिथिक, अब देखो क्लाइमेटिक चेंज भी थे और साथ साथ में जो बेसिक था वो था कल्चरल चेंजेस, सो वो तो रहेगा। ठीक है, द स्किल्स ऑफ मॉडिफाइंग देयर टूल्स, ठीक है, और फाइंडिंग न्यू टूल्स। ठीक है, लेकिन when we talk about the Paleolithic divisions, ठीक है, lower, middle and upper, in that case what was the major difference on the basis of which they were divided? Occupation was the similar almost entire Paleolithic, ठीक है, that was the hunter and gatherers, ठीक है, that was the sharpness of their tools, they changed their tools according to their huntings, so they improvised their hunting skills by reshaping their
टूल्स, ठीक है। तो टूल्स में वो डिफरेंस नहीं आएगा, बट वो शार्प करते जाएंगे, और जब शार्प करते जाएंगे तो नए टूल्स का नाम हम देते जाएंगे उनको, ठीक है। और जब मेसोलिथिक में आएंगे तो टूल्स, देखो साइज हमेशा टूल्स का अभी साइज सेम रहेगा लेकिन शार्प होते जाएंगे पेलियोलिथिक में। जब मेसोलिथिक में आएंगे तो साइज शॉर्ट भी होगा और टूल्स और शार्प होते जाएंगे, ठीक है। और फिर न्यूलिथिक तक आते आते क्या होगा, स्टोन्स जो है मल्टीपल टाइप के हो जाएंगे, जब हमने फिशिंग की बात की थी, ठीक है। तो मल्टीपल टाइप्स के भी हो जाएंगे, और साथ साथ में हमें वेरियस, क्योंकि अब हंटिंग से फोकस कहां आ गया है, एग्रीकल्चर पे, तो हंटिंग के लिए वैरायटी ऑफ टूल्स बंद हो जाएंगे। और जब टूल्स के बाद मेटल आ गया तो स्टोन्स का इंपॉर्टेंस कम हो गया, क्योंकि हम जब चालकोलिथिक पढ़ेंगे, आईबीसी जब हमने, जिसने भी थोड़ा बहुत हड़प्पन कल्चर के बारे में पढ़ा होगा, तो लार्जली वी डिस्कस अबाउट द पॉटरी एंड मेटल्स, ठीक है। हमने स्टोन ऑब्जेक्ट्स की बात ही नहीं करी, क्योंकि at that time men was not dependent upon the hunting skills, ठीक है। and when I talk about men, so I do not support patriarchal society, ठीक है। men means human being, that's written over the history, ठीक है। men includes women also, ठीक है। and paleo में भी there is no such things that who were doing the huntings, ठीक है। तो हिस्टोरियंस का अभी तक कोई ऑब्जर्वेशन नहीं है कि हंटिंग के लिए कौन जाता था, मेन जाते थे, वुमेन जाते थे। तो वो कहते थे, हिस्टोरियन सेज दैट both men and women both were involved in hunting skills. Even in the last Neolithic sites and the Mesolithic sites, when painting was started, तो पेंटिंग के थ्रू हमें जेंडर डिवीजन जरूर मिला है, क्योंकि मेसोलिथिक में हमको पता है कुकिंग के प्रोस्पेक्ट्स मिलने स्टार्ट हो गए। तो जब कुकिंग स्टार्ट हुआ, देन द labor division we find in the paintings of the Bhimbedka. So according to that, because on the basis of artifacts we could not find such facts that the labor division was there, but through the paintings we found that there was a labor division mentioned over the walls. So on the basis of that we can interpret that yes, over the last period, Neolithic, Mesolithic to Neolithic period, the labor division facts were found, ठीक है। तो लेबर डिवीजन वॉज देयर अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियंस, ठीक है। लेबर डिवीजन आ चुका था, क्योंकि डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हो गया था, सेटलमेंट स्टार्ट हो गया था, कुकिंग स्टार्ट हो गई थी। तो जहां कुकिंग होगी वहां वुमेन, ठीक है। समझ में आया? तो एक बार स्टार्ट करते हैं पहले ये डिवीजन, फिर आते हैं चालकोलिथिक पे, ठीक है। तो नोट भी कर लो, है ना, नोटिंग डाउन दिस वेरी इंपॉर्टेंट। सो जो लोग, हाउ मेनी ऑफ यू हैव द फर्स्ट क्लास? अच्छा, तो आप लोग नोट्स कल के ले लेना किसी से भी अपने कल, ठीक है। तो टुडे इज द सेकंड क्लास एंड कंटिन्यू। हाउ मेनी पेजेस वी हैव डन? 3. Leave 3 pages and start with the 4th page, right? Okay. So did we do the only at the later stage that they attain the knowledge of ashes, knowledge of fire? हो चुका था पॉइंट? नहीं? हाँ, नोट्स में लास्ट क्या था? व्हाट वाज द लास्ट पॉइंट ऑफ द नोट्स? अच्छा, नोट में क्या लिख पाया था? Okay. And what was the point before note? Major sites. What were there? And what was before that? Okay, types of tools. Now at the last point, note down after note. ठीक है, नोट में पॉइंट्स, लास्ट पॉइंट नोट कर लो, दैट ओनली एट द लेटर स्टेज, ओनली एट द लेटर स्टेज of Paleolithic, only at the later stage of Paleolithic that they attained the knowledge of fire, knowledge of fire. In bracket note down, traces of ashes, traces of ashes found in this period in Kurnool caves. Kurnool caves, where is Kurnool caves? Andhra Pradesh. Okay. Huh. Then, and also note down one more point, that we find sites of Stone Age near the hills, river valleys,
near the hills, river valleys, forests, across India, except the alluvial plains. So look at here. So alluvial plains. Are you aware of alluvial plains? Where are alluvial plains found? Ganga, Yamuna, Doab. ठीक है. If you look at the India's map, you will find Rajasthan, right? That is a desert place, and the Himalayas, and the Deccan Plateau, right? And the northeast. बस उन चारों को छोड़ दो जो बीच में दिख रहा है ना, यूपी, बिहार, that area is called alluvial plain. तो plains, ठीक है. तो plains पे हमको sites नहीं मिली हैं, लेकिन सराउंडिंग ऑफ प्लेन्स, ठीक है, यानी कि जो जम्मू कश्मीर, राजस्थान और जो डेक्कन प्लेटो का बाउंड्री है, ठीक है, यानी कि मालवाज, ठीक है, हिल्स एरियाज में हमको साइट्स मिली हैं, एक्सेप्ट एलुवियल प्लेन्स एंड सिंधु रिवर प्लेन्स. ठीक है, ये नोट कर लो. इंडस रिवर, इंडस वैली और इंडस रिवर प्लेन्स, alluvial plains of Sindhu river and Gangetic and Gangetic. एक्सेप्ट वन साइड, नोट करो इसमें भी, एक्सेप्ट वन साइड, एक्सेप्ट वन साइड, काल्पी, KALPI, एक्सेप्ट काल्पी. Kalpi. How many of you from UP? Do you know that where is Kalpi? Where? Jalan. ठीक है, डिस्ट्रिक्ट जालौन, उत्तर प्रदेश. ठीक है, that is lying at the Yamuna Doab, right? So, but it is also surrounded by the hills, but it is falling under the Doab or the alluvial plain. That is why it is exception. ठीक है, Kalpi. ठीक है, तो but we cannot assume that they did not live there. ठीक है, तो इट इज नॉट द राइट इंटरप्रिटेशन, क्योंकि हमें साइट्स नहीं मिली हैं, हमें फाइंडिंग्स नहीं मिली. सो वी कैन से दैट ओनली, यू हैव टू बी वेरी प्रिसाइज टू दिस लैंग्वेज, दैट वी डिड नॉट फाइंड द आर्टिफैक्ट्स और द आर्कियोलॉजिकल साइट्स इन दीज एरियाज. ठीक है, तो कई बार ऐसा होता है क्योंकि एलुवियल प्लेन्स है तो कीप डिटोरेटेड, तो हो सकता है कि साइट्स जो है हमें काफी ज्यादा डिग करके मिले. ठीक है, और सेटलमेंट से स्टार्ट हो गए. ठीक है, क्योंकि हिल्स पे सेटलमेंट स्टार्ट नहीं हुए, तो वी हैव लॉट ऑफ स्कोप फॉर द आर्कियोलॉजिस्ट टू डिग ओवर देयर. ठीक है, बट अभी घर बन चुके हैं, तो हो सकता है हाँ दिल्ली, JNU, इन सब जगह, क्योंकि ये अरावली हिल्स के आसपास है, तो JNU में वी हैव फाइंड दैट आर्टिफैक्ट्स. ठीक है, ऑफ द लोअर पैलेलिथिक साइट्स. ठीक है, अर्लीस्ट सिविलाइजेशन. ठीक है, अर्ली मैन की जो थी, तो JNU, DU, ये इतना आसपास का एरिया है ना, ये पहले हिल्स था ना, अरावली हिल्स का जो पार्ट है, तो यहाँ पे ऑल दिस प्लेस ऑल्सो बिलोंग टू दोज पैलेलिथिक साइट्स. ठीक है, तो ये सब जगह मिला, चाहो तो एग्जाम्पल में नोट कर लेना भी. ठीक है, साइट्स में. सो नाउ कमिंग टू द मिडिल पैलियोलिथिक, सेकंड B, मिडिल पैलियोलिथिक एज. Middle division of this period is largely, first point, division of this period is largely based upon types of tools, and a very minor change, in climate, full stop. Next point, tools became smaller, little smaller. ठीक है, ज्यादा बहुत बड़ा चेंज नहीं आया. Tools became smaller, in bracket, minor changes, comma, lighter and sharper, largely flake based,
comma, tools of tools of lower paleo also used. So when we look at the developments took place over the period of time, remember that the older culture were also going along with. ठीक है, तो जब मिडिल में आए या मेसो में आए तो साथ साथ में कुछ साइट्स पे हमको लोअर और मिडिल और अपर पैलियो भी देखने को मिल रहा था. ठीक है, तो ये इज नॉट लाइक कंप्लीटली गेट अवे विद दोस कल्चर्स. ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, स्क्रैपर्स borers, BORERS, scrapers, borers, blades, etc. or and points, POINTS, points were new tools. Were new tools. ठीक है, देखो ये देखो, वर्क वॉज ऑलमोस्ट सिमिलर. ठीक है, ऑल वर यूज फॉर हंटिंग एंड स्किनिंग. ठीक है, तो ब्लेडर्स थोड़ा और शार्प हो गए ब्लेडर्स. ठीक है, तो ब्लेड्स लाइक दे वर यूज्ड फॉर लाइक वे यूज नाइफ. तो एक चॉपर होगा, एक नाइफ होता है, तो एक नाइफ पर्पज से भी उन्होंने फिर एक ब्लेड टाइप के टूल्स बनाए. तो देखो टूल्स थोड़े हल्के हो गए और थोड़े शार्प होने शुरू हुए. अब देखो यहाँ पर आप देखोगे कि पहले हमने देखा कि जो आप पहले स्टोन्स आप देखो तो आप देखोगे कि जो शार्पनेस थी तो वो लार्जली वन साइडेड हुआ करती थी. ठीक है, वन साइडेड और टू साइडेड. अभी देखो थ्री साइडेड आपको देखने को मिलेगी. ठीक है, सो अब देखो यहाँ से टू साइडेड स्टार्ट हो गया. ठीक है, और जब अपर में आएंगे ना तो पैरेलल शार्पनेस होगी बोथ साइड्स. ठीक है, जैसे जैसे तलवार होती है ना, तो बिल्कुल वैसे ही डबल साइडेड. ठीक, तो ये बिल्कुल अब देखो धीरे धीरे यहाँ पे शार्पनेस अभी वन साइडेड है शार्पनेस, अभी क्या टू साइडेड शार्पनेस. तो धीरे धीरे ऐसे डेवलपमेंट हुए स्टोन्स की शार्पनेस में. तो ब्लेड्स, पॉइंट्स, स्क्रैपर से आए, फिर ब्यूरेंस भी आएंगे. क्योंकि हमने क्या देखा आगे आगे जब मेसोलिथिक के आगे बढ़ेंगे तो माइक्रोलिथ्स आएंगे. तो माइक्रोलिथ्स को हमको वुडन या बोन टूल्स में अटैच करना है, तो हमें क्या करना होगा, होल करना होगा. तो ब्यूरिन्स आएंगे, छोटे शार्प स्मॉल टूल्स. तो ब्यूरिन्स हमें कब मिलेंगे, आगे अपर पैलियोलिथिक में. ठीक है, तो यहां तक जो मिडिल पैलियोलिथिक में आया, जो शार्पनेस इंक्रीज हुई. और क्या नए टूल्स मिले हमको, पहले कौन कौन से थे, पेलियो लोअर पेलियो में हमने क्या लिखवाए थे कल, चॉपर्स, लार्जली क्लेवर्स और हैंड एक्सेस. तो अब नए कौन कौन से थोड़े टूल्स आ गए, तो स्क्रैपर्स. ठीक है, और फिर ब्यूरिन्स और ऐड होंगे. ठीक है, जो अपर पैलियोलिथिक में आएंगे. ठीक है, फिर माइक्रोलिथ्स. अब बड़े टूल्स नहीं देखने को मिलेंगे, फिर छोटे टूल्स लार्जली जो हमें मिले. ठीक है, अलॉन्ग विद द टूल्स ऑफ द लोअर एंड मिडिल पैलियोलिथिक एज. ठीक है, नाउ नोट डाउन upper Paleolithic age. This is the last phase. This is the last phase of Ice Age. This is the last phase of Ice Age declining. तो डिक्लाइनिंग का लास्ट फेज है. अब डिक्लाइनिंग होना स्टार्ट होगा. मेसोलिथिक, और फिनिश कब होगा, न्यूलिथिक. वेरी गुड. ठीक है, तो लास्ट फेज ऑफ आइस इज डिक्लाइनिंग. देन दिस फेज हाँ क्या लिखा, इन दिस फेज कर दो. इन दिस फेज we find the emergence of Homo sapiens.
Next point, animal domestication started in the last phase. Animal domestication started in the last phase of Upper Paleolithic. Climate became comparatively warm. Climate became comparatively warm. ठीक है, अब देखो हमने एक पॉइंट लिखा, एनिमल डोमेस्टिकेशन स्टार्टेड इन द लास्ट फेज ऑफ अपर पेलियोलिथिक. तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दैट स्टेटमेंट? एनिमल डोमेस्टिकेशन, ठीक है, तो व्हाट इज दैट? हाँ, वेरी गुड. सो यानी कि अब हमने देखा कि ये जो चेंजेस आने स्टार्ट हुए लास्ट फेज, तो इसका मतलब है कि पेलियोलिथिक की तीनों साइट्स में बहुत बड़े डिफरेंसेस नहीं आए, लास्ट फेज में आए. इसका मतलब है टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट फेज, यानी कि मेसोलिथिक में लार्ज स्केल डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हो चुका होगा. बात समझ में आ रही है? तो लास्ट फेज का मतलब है कि अभी वाइड स्प्रेड नहीं है डोमेस्टिकेशन, बट वी फाइंड सम साइट्स वेयर एनिमल बोन्स वर आल्सो देयर अलोंग विद द टूल्स एंड ह्यूमन स्केलेटन. तो अब साथ साथ में ये हमें जो टूल्स, ये जो बोन्स मिली हैं, तो अब कैसे पता चलेगा कि डोमेस्टिकेटेड है या फिर डोमेस्टिकेटेड नहीं है? ये बताओ. हमें एनिमल के बोन्स मिले, तो हाउ डिड यू फाइंड दैट दे वर डोमेस्टिकेटेड और नॉट? तो हो सकता है कि वाइल्ड एनिमल्स मरे हो, और किसी ने कुछ पढ़ा हो, कुछ आइडिया हो. देखो एक, हाँ हाँ, but it did not, we did not find such site where they were, the skeletons of the animals were found along with their masters. Hmm? हाँ, yes, but Burjom does not belong to the Paleolithic period. ठीक है, हाँ. देखो हम बात समझो, हमें बोन्स मिले हैं, अब बोन्स की बेसिस पे कैसे बताओगे कि ये डोमेस्टिकेटेड थे या वाइल्ड एनिमल्स थे? एज सिंपल एज दैट. अच्छा ये बताओ कि आप लोगों ने डॉग की ब्रीड्स के बारे में अवेयर हो? ठीक, थोड़ी थोड़ी. ठीक है, तो कुछ ब्रीड्स देखी होंगी ना, कि जैसे फॉर एग्जांपल साइबेरियन हस्की, देखा है? मैं दिखाऊं गूगल पे, देखा होगा ना, जिस बड़े डॉग्स होते हैं, लार्ज हेयर्स होते हैं. तो अगर उसका नेटिव प्लेस क्या है? हाँ, हिल्स, कोल्ड प्लेसेस. और आपको अगर वो राजस्थान में मिले, तो आप क्या कहोगे? वो अपने आप तो गया नहीं होगा, जरूर उसको डोमेस्टिकेट किया गया होगा, क्योंकि दैट इज नॉट देयर नेटिव प्लेस. आई यू गेटिंग दैट नाउ? यानी कि जहां जहां ह्यूमन गए उसको लेके गए. दिल्ली में देखा होगा ना, दिल्ली इज वार्मर, ठीक है, कंपेरेटिवली अदर प्लेसेस. कितनी गर्मी है यहाँ पर, यहाँ भी आपको साइबेरियन हस्की मिलते हैं, वो एसी में रहते हैं घरों के अंदर, उनको वो आर्टिफिशियल क्लाइमेट प्रोवाइड किया जाता है. आई एम गेटिंग दैट? तो अब अगर यहाँ आपको खूब सारे एंड जहाँ पे सेटलमेंट्स हैं, साथ में आपको ऐसे एनिमल्स मिले जो एक्चुअली दे आर नॉट देयर नेटिव प्लेसेस. पॉइंट नंबर वन. पॉइंट नंबर टू, दे आर actually over the period they are domesticated, so they lost their hunting skills. तो आप देखोगे जो कब्स, टाइगर कब्स, ठीक है, जो शुरुआत से जहां पर अलाउड है उनको टेम करना, डोमेस्टिकेट करना, यू विल फाइंड दैट उनके जॉज जो है वीक होंगे, उनके जो टीथ होंगे वो वीक होंगे. क्यों? दे वर नॉट इन्वॉल्व इन द हंटिंग स्किल्स. उनको मीट परोस के दिया गया थाली में और उन्होंने खाया. आई यू गेटिंग दैट? सो ये इन सब चीजों की बेसिस पे अब ये पैटर्न है पता करने का कि देवर वाइल्ड एनिमल्स और डोमेस्टिकेटेड. सो सम एनिमल्स विच वर एक्चुअली नॉट वाइल्ड, जैसे शीप है, तो शीप क्या है, शीप वाइल्ड एनिमल्स की काउंट पे नहीं आता है. ठीक है, वो हंटिंग स्किल, वो अटैक नहीं करते हैं. तो दैट इज व्हाई वी फाइंड द एविडेंसेस ऑफ स्केलेटन्स ऑफ शीप. ठीक है, और गोट्स, दे वर नॉट नेटिव्स. ठीक है, तो जो काफी हेयरी शीप्स और गोट्स थी वो हमें कहाँ मिली? मिर्जापुर में, पेलन वैली के पास. तो ये तो आर्कियोलॉजिस्ट सरप्राइज थे कि वी कैन नॉट एक्सपेक्ट दैट सच काइंड ऑफ एनिमल्स कैन बी फाउंड ओवर दिस प्लेस.
तो इसका मतलब क्या गेस किया गया, इंटरप्रेट क्या करोगे आप? सोचो कि अगर आप आर्कियोलॉजिस्ट हो, कोई अगर कोर्स कर रहा हो हिस्ट्री का, तो कैसे इंटरप्रेट करोगे? यही तो इंटरप्रेट करोगे ना कि अगर आपको प्लेन्स में एनिमल टाइगर्स के स्केलेटन्स मिले कई सारे जगह जगह पे, इसका मतलब तो ये है कि या तो यहाँ जंगल रहा होगा या तो इनको डोमेस्टिकेट किया गया होगा। आर यू गेटिंग दैट? और डोमेस्टिकेट का आइडिया कब मिलेगा कि जंगल नहीं था, डोमेस्टिकेट किए गए? जब उनके बोन्स में डिफरेंसेस होगा, सेम स्पीसीज के बोन्स में, जो वाइल्ड एनिमल्स के बोन्स और जो डोमेस्टिकेट किए गए में डिफरेंस होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही? तो दीज वर द एक्चुअली बेसिस ऑन विच दिस हिस्टोरियंस डिवाइडेड दैट। ठीक है, तो टीथ मिले, ठीक है, तो हम टीथ के बेसिस पे इनको टीथ को चेक किया गया, कौन कौन से ज्यादा हार्ड थे, कौन लेस हार्ड। ठीक है, तो इसकी बेसिस पे, सो नाउ नोट डाउन दिस पॉइंट। द एनिमल बोन्स, animals and the animal bones discovered in the Belen Valley in the Belen Valley included those of animals like cattle, those of animals like cattle, sheep and goat, which seems not to be indigenous, means native, not to be indigenous to this area, comma, hence scholars interpreted that they may have been brought here from the northwest India, and on the basis of that, it would represent an early findings of animal domestication. Next point, the upper paleo cave sites, of Kurnool, and Muchatla Chintamanu Gavi site in Andhra Pradesh. Is it visible online? Yes, sir. Okay, fine. Oh, sorry. Muchatla Chintamanu Gavi site in Andhra Pradesh are the only place, underline that, are the only place in the subcontinent
where tools of animal bones, underline that, animal bones have been found in upper Paleolithic phase. Right? Are you getting that? So now we started finding the domestication of animal and the use of एनिमल बोन्स एज अ टूल. अभी तक क्या था, स्टोन टूल्स थे, अब एनिमल बोन्स के भी मिलने, पहली साइड मिलनी स्टार्ट हो गई. अब क्या होगा, माइक्रोलिथ में, यानी कि जब माइक्रोलिथ पीरियड आएगा, यानी कि मेसोलिथिक पीरियड, तो यहाँ पे एनिमल बोन्स के टूल्स मिलने स्टार्ट हो गए. ठीक है. सो नोट डाउन द मेजर साइट्स, मेजर अदर मेजर साइट्स, छोटी सी हेडिंग डालो और नोट करो अदर मेजर साइट्स. सोन वैली, सोन वैली देखो, बेलन वैली, सोन वैली, ठीक है, भीमबेटका, ये डीडवाना राजस्थान. कुछ 4-5 नाम आपको याद रखने होंगे, बिल्कुल मेमोराइज करने होंगे, बिकॉज दे प्रोवाइड द इन्फॉर्मेशन ऑफ ऑल द एजेस. ठीक है. तो सोन वैली हमने देखा था कि अभी हम जो मेसोलिथिक की बात करेंगे, फिर अगेन विल टॉक अबाउट सोन वैली. न्यूलिथिक में भी हम विल टॉक अबाउट द बेलन वैली, सोन वैली. ठीक है. तो सोन वैली की हमने बात की थी, तो कौन सा स्टेट बताया था, कहाँ है सोन वैली? यस. ठीक है, पंजाब ऑफ पाकिस्तान. ठीक है, सोन वैली ब्रैकेट पंजाब पाकिस्तान. भीमबेटका, भीमबेटका रायसेन डिस्ट्रिक्ट एमपी. डीडवाना, again Didwana and Pushkar Rajasthan. Narmada and Godavari Valley, Patne Maharashtra, Patne, it's not Patna, Patne, Patne. Patne is the village in Maharashtra, Patne. Next point. Hunting and food gathering is still largely practiced. Hunting and food gathering is still largely practiced. ठीक है. तो अभी तक एविडेंसेस मिले डोमेस्टिकेशन के, लेकिन अभी प्रैक्टिस जारी है. ठीक है. तो वो एक फ्यू केसेस है. ठीक है. नाउ टूल्स, put the small heading from the next line, tools. The important technical advance of the upper paleo was the upper sorry the important technical advance of the upper paleo was the making of parallel sided, and underline that, put it into box also, parallel sided. This is the new advancement on the upper Paleolithic age. Parallel sided blades. ठीक है. Parallel sided blades. देखो अब लार्जली सारे टूल्स कैसे मिलेंगे, मोस्ट शार्पर एंड पैरेलल साइडेड. ठीक है. तो दोनों साइड से वो आपको शार्प मिलेंगे, पैरेलल साइडेड ब्लेड्स. एग्जाम्पल्स, new stones, parallel sided blades, and burins.
and burins. And when you write burins, write in the bracket of burin, used for engraving. Used for engraving and carving in the woods. Now we'll move toward the Mesolithic. तो अब मुझे बताओ कि क्या क्या इन्वेंट हो चुका है, जिनके हमें बिल्कुल न्यू एविडेंसेस मिल चुके हैं. तो फायर डोमेस्टिकेशन और हाँ माइक्रोलिथ स्टार्ट हो चुका है. ठीक है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल अब माइक्रोलिथ पीरियड में ही स्टार्ट होगा. ठीक है, चलो नेक्स्ट. तो फायर इन्वेंट हो चुका है, डोमेस्टिकेशन स्टार्ट. अभी क्या है, अभी कल्टीवेशन स्टार्ट नहीं हुआ है. तो वो कल्टीवेशन कब स्टार्ट होता है, न्यूलिथिक में. लेकिन अर्लीस्ट एविडेंस कहाँ मिलेंगे हमको, मेसोलिथिक के लास्ट फेज में. ठीक है, डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांटेशन. तो मेसोलिथिक में देखो क्या क्या नया आया, नोट करो. नाउ पुट द हेडिंग मेसोलिथिक एज. So that is point number 2. First was the Paleolithic, and Paleolithic के सब points थे A, B, C. ठीक है, lower, middle, upper Paleo. Then second point is Mesolithic. The term derived from Greek word meso. The term derived from Greek word meso means middle, and we know that lithic is stone. The term derived from Greek word meso. मेसोलिथिक लिखा, मेसो को लिखो, अंडरलाइन करो मेसो एंड पुट इट इनटू ब्रैकेट इन्वर्टेड कॉमर्स. मेसो मींस मिडिल एंड लिथिक अगेन मींस टूल्स. This culture belong, first point, this culture belong to Holocene era. This culture belonged to Holocene era largely. The end of Ice Age started in this phase. The Ice Age ended in this phase. Now second point, many environmental changes took place during this period of transition. Third point, the climate seems to have been wet and warm. The climate seems to have been wet and warm. Done? हाँ, अब देखो मुझे बताओ कि अब हम आइस एज वो डिक्लाइन हो रहा है. ठीक है, एंड पे आ गया, बिल्कुल एंड की जो फेज है वो उसका स्टार्ट हो चुका है. तो जब विंटर से हम समर्स की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, तो समर्स के टाइम पे एक और ऐसा फिनोमेना हमको देखने को मिलता है. देखो पहले कहाँ रह रहे थे, केव्स में, है ना, जो आइस एज था, क्योंकि हर तरफ आइस थी तो केव्स में रहना उनकी मजबूरी थी. अब जैसे जैसे वार्म होता जाएगा तो क्या करेंगे वो, वेरी गुड, केव से बाहर निकलना शुरू करेंगे. तो व्हाट इज योर इंटरप्रिटेशन, द मोर सेटलमेंट्स वी विल फाइंड इन द लेटर फेजेस और द अर्लियर फेजेस, लेटर, क्योंकि अब क्या हुआ, वो स्प्रेड होना शुरू हुआ. ठीक है, तो सेटलमेंट्स अक्रॉस इंडिया थे लेकिन फ्यू थे. अभी हमको ज्यादा मिलने स्टार्ट होंगे सेटलमेंट्स, क्योंकि वो स्प्रेड हो रहे हैं. और अब जब स्प्रेड होंगे तो लार्जली हमें जो हिल्स के बाहर के जो एरियाज हैं वहां भी हिल्स के जो अभी तक कहाँ थे सेटलमेंट लार्जली, हाँ हिल्स एरियाज, क्योंकि उनको स्टोन्स चाहिए, उनको फॉरेस्ट चाहिए. ठीक है, और उनको शेल्टर चाहिए. तो अभी बाहर निकलना शुरू किया. तो जब बाहर निकलना शुरू किया तो वो वैलीज के आसपास सेटलमेंट मिलने हमको शुरू हो जाएंगे. ठीक है, तो इसमें नोट करो लास्ट पॉइंट. हाँ, हैवी कहाँ तक लिखा, हैव बीन वेट एंड वार्म. ठीक है, अब इसके आगे नोट करो विद हैवी रेनफॉल, है ना. अब रेनफॉल स्टार्ट हो गई, हैवी रेनफॉल इन समर्स
and moderate level of rainfall in winters. Full stop. ठीक है, तो अब देखो जैसे कि हमको पता है कि देयर इज नो यूनिफॉर्म पैटर्न ऑफ रेनफॉल अक्रॉस इंडिया, ठीक है, अभी भी ऐसा नहीं है कि हमें यूनिफॉर्म रेनफॉल मिले सब जगह. दैट इज बिकॉज ऑफ द टेराइन्स, अवेलेबिलिटी ऑफ द हिल्स एंड द क्लाइमेटिक जोन्स ऑफ इंडिया, ठीक है, एंड बिकॉज ऑफ द मॉनसूनिक पैटर्न ऑल्सो. तो हमें पता है कि रेनफॉल वेरी करती है प्लेस टू प्लेस. तो वैसे ही क्या होगा यहाँ पर, ये जो क्लाइमेट है वो भी वेरी करेगा. तो सब जगह ऐसा नहीं था, एवरीवेयर नॉट देयर वाज लाइक रेनफॉल इज देयर और वेट इन फॉर्म, सो देयर आर सम एक्सेप्शंस आल्सो, ठीक है. तो वो कौन कौन से एक्सेप्शनल प्लेस हैं वो नोट करो कि दीज चेंजेस वर नॉट, नेक्स्ट पॉइंट, दीज चेंजेस वर नॉट सेम एवरीवेयर. फॉर एग्जाम्पल और डैश करके नेक्स्ट पॉइंट, बीर भानपुर, बीरभानपुर, वेस्ट बंगाल, experienced, बीरभानपुर, वेस्ट बंगाल experienced increased aridity, increased aridity मतलब ड्राइनेस बढ़ रही थी, ठीक है, increased aridity, experienced increased aridity. नेक्स्ट, डीडवाना राजस्थान, डिडवाना राजस्थान. देखो अब यहाँ पे उल्टा हो गया, ये दिस इज नियर द कोस्ट एरिया, ठीक है, वेस्ट बंगाल, सॉरी, हाँ, वेस्ट बंगाल के पास. तो यहाँ क्या देखने को मिला, इंक्रीज ड्राइनेस, और दैट वाज ड्राई एरिया. डीडवाना राजस्थान एक्सपीरियंस्ड मोर रेनफॉल, एक्सपीरियंस्ड मोर रेनफॉल. नेक्स्ट, ईस्टर्न एमपी, एमपी मीन्स मध्य प्रदेश, ईस्टर्न एमपी climate became wet and warm, became wet and warm. That was the climate. Now next, settlements, settlements. तो जैसा कि बात करी हमने, तो क्या सेटलमेंट्स कैसे हुए, ज्यादा कन्फाइंड थे या स्प्रेडेड थे? वेरी गुड, नोट डाउन. वन ऑफ द स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ द इंडिया, one the striking feature of the Indian Mesolithic phase is the spread of, one of the striking features of the Indian Mesolithic age is the spread of settlements. Underline that, spread of settlements to new ecological regions. Next point, बागौर राजस्थान, BAGOR, बागौर राजस्थान, बागौर राजस्थान and बेलन वैली यूपी. we comma we find the earliest evidences of, we find the earliest evidences of cultivation of plants, cultivation of plants in this period, and domestication of animals,
and domestication of animals. Okay, so now put the small heading, domestication of animal. ठीक है, तो अभी याद रखना हम नया नया क्या क्या पढ़ रहे हैं, क्या क्या नया मैथमेटिक्स में इंट्रोड्यूस हो रहा है, फिर एक साथ उसको अंडरलाइन करेंगे. ठीक है, सो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल. सो एनिमल्स नोट करना, फर्स्ट domesticated animal, first domesticated animal was sheep. First domesticated animal was sheep, and bracket note down wild animal, bracket wild animal. ठीक है, अब देखो एक पॉइंट और नोट कर लो, फिर बात करते हैं. फर्स्ट टेम्ड एनिमल, फर्स्ट टेम्ड एनिमल was dog. First tamed animal was dog. ठीक, नॉन वाइल्ड, ब्रैकेट नॉन वाइल्ड. हाँ, नॉन वाइल्ड. हाँ, नेक्स्ट पॉइंट, अदर domesticated animals, goat, cattle, and pigs. ठीक है, अब देखो दो कैटेगरी इसलिए बताई हैं बिकॉज शीप इज नॉट सपोज टू बी डोमेस्टिकेटेड, बट मैन डोमेस्टिकेटेड इट. बात समझ में आई? और डॉग वाज सपोज टू बी टेम्ड. ठीक है, तो दो तरह के डोमेस्टिकेशन थे. तो सबसे पहले जिसको डोमेस्टिकेट किया गया वो थे डॉग्स, और पहला वाइल्ड एनिमल कौन था? शीप, क्योंकि डॉग साथ में रहते थे. ठीक है, तो सबसे पहले जिस एनिमल को साथ में रखना शुरू किया वो कौन सा था? डॉग. और पहला एनिमल जिसको डोमेस्टिकेट किया गया, डोमेस्टिकेटेड, ठीक है, दे वर नॉट सपोज टू बी डोमेस्टिकेटेड. अगर किसी को टाइगर डोमेस्टिकेट करना है तो टाइगर इज नॉट डोमेस्टिकेटिंग एनिमल. ठीक है, ये डिफरेंस समझ में आ रहा है? तो ये एक माइनर डिफरेंस है जहां पे आपको कई बार देखने को मिलेगा शीप डोमेस्टिकेटेड. तो डोमेस्टिकेट किया गया. और टेम्ड एनिमल जो पालतू होते हैं वो कौन? डॉग. ठीक है, और अदर एनिमल्स कौन कौन से थे वो मैंने नोट करवा दिया. दे वर नॉट द फर्स्ट. ठीक है, बट वी फाइंड दैट दे वर आल्सो डोमेस्टिकेटेड. ठीक है, और जो अदर एनिमल्स के भी हमको प्रूफ मिलेंगे, ठीक है, वो हम एनिमल्स के सिर्फ प्रूफ देंगे थ्रू द पेंटिंग्स. पेंटिंग्स में जिन एनिमल को डिपेक्ट किया गया है, बट वी कैन नॉट से दैट वेदर दे वर डोमेस्टिकेटेड और नॉट. ठीक है, दिस एनिमल्स वर डिपिक्टेड ओवर द वॉल्स ऑफ द केव्स. ठीक है, नाउ नेक्स्ट नोट डाउन पेंटिंग्स. यस, Sir, in NCERT it was written that first animal tamed was wild and sister of dogs. And you have said it's non-wild. सी देखो वाइल्ड एनिमल्स में शीप्स एंड डॉग को रखा गया है, लेकिन जो सबसे पहले नॉन वाइल्ड एनिमल्स मैं बता रहा हूं इसीलिए कि जो नॉन वाइल्ड थे, वो वाइल्ड मतलब देखो दो तरह की कैटेगरी थी. एक जो तरीके के डॉग थे वो दैट दे हैड द हंटिंग स्किल्स. बात समझ में आ रही है? जिनकी हंटिंग स्किल्स थी. और ये जो डॉग जो साथ में सबसे पहले रहना शुरू हुए, दे वर नॉट हैविंग द हंटिंग स्किल्स. वो साथ में रहते थे केवल. तो इसलिए जब आपके पास साथ में लिखेंगे शीप एंड डॉग वाइल्ड एनिमल्स, क्योंकि डॉग में जो कैटेगरी थी वो वाइल्ड भी थी और नॉन वाइल्ड भी थी, लेकिन जो सबसे पहले उनके साथ रहना शुरू किए वो कौन से थे? वो नॉन वाइल्ड थे. और जब वाइल्ड की बात करेंगे तो शीप एंड डॉग साथ साथ नाम लेते हैं, लेकिन वाइल्ड कैटेगरी में कौन आएगा सबसे पहले? शीप. तो इसलिए थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इसलिए मैंने बताया कि जब आप और डिटेल में जाओगे इसके, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी में सिंगल एक लाइन लिख दी गई है कि शीप एंड डॉग. तो वाइल्ड एनिमल्स में शीप एंड डॉग, बट नॉन वाइल्ड में जब हम बात करेंगे जिनको टेम्ड, तभी लिखा गया ना डोमेस्टिकेटेड. आर यू गेटिंग दैट? द वर्ल्ड डोमेस्टिकेटेड. जब आप टेम्ड एनिमल पढ़ोगे ना एनसीईआरटी में, तो आप टेम्ड में देखोगे डॉग लिखा होगा. फर्स्ट टेम्ड. हाँ, ठीक है, तो इसलिए क्योंकि वो डॉग्स भी तो दो तरह के होते हैं. आपने देखा होगा वाइल्ड कैटेगरी भी होती है डॉग्स की, और आज भी आप देखोगे जो डोमेस्टिकेटेड डॉग्स होते हैं, जो नॉन वाइल्ड होते हैं और जो वाइल्ड होते हैं, मींस दे आर डिपेंडेंट कंप्लीटली अपॉन. जो वाइल्ड एनिमल्स हैं दे आर ऑमनिवोरस, वो सब कुछ खाते हैं.
ठीक है। और जो अर्ली जो टेम्ड थे उनको जो पर्पस उनका था कि हंटिंग करके, हंटिंग स्किल्स नहीं थे उनके साथ में, वो फ्रूट्स भी खाते थे और वो साथ में फ्लैश, एनिमल फ्लैश भी यूज करते थे। ठीक है, तो आज भी ऐसा है, जो हमारे, जो हम देखते हैं जो टेम्ड डॉग्स होते हैं, ठीक है, दे कैन ईट बोथ, ठीक है, बट दे आर नॉट कंप्लीटली डिपेंडेंट अपॉन द फ्लैश। ठीक है, तो दे दोज वाइल्ड डॉग्स दे वर कंप्लीटली डिपेंडेंट अपॉन फ्लैश, दे वर कॉल्ड वाइल्ड। ठीक है, तो क्योंकि जंगल से ही लाए गए थे, और ये जो डॉग्स जिन्होंने जो साथ में रहते थे वो उनके सेटलमेंट्स के साथ में ही ब्रीडिंग उनकी होती थी और साथ में रहते थे, दे वर नॉट कंप्लीटली वाइल्ड एनिमल्स। ठीक है, जिनके अंदर समझ रहे हो ना कि जो कोर वाइल्ड होते हैं, जिनके अंदर कोर हंटिंग स्किल्स होती है, तो वैसे डिफरेंशिएट करो। लेकिन थोड़ा कंफ्यूजिंग है डॉग्स का, इसलिए जहां पे टेम्ड वर्ड यूज हो, मैं बता रहा हूं, अंडरलाइन कर लो उसको, जहां पे टेम्ड वर्ड यूज हो तो टेम्ड के लिए हम डॉग वर्ड यूज कर लेंगे, और जहां पर वाइल्ड एनिमल्स का वर्ड यूज होगा तो वहां पे शीप्स अलोंग विद डॉग। ठीक है, क्योंकि जब शीप्स आई तो साथ में वाइल्ड डॉग्स को भी उन्होंने डोमेस्टिकेट करना शुरू किया, लेकिन सबसे पहले जब जो साथ में रहते थे उनके, वो नॉर्मल डॉग्स ही थे। ठीक है, दे वर नॉट हैविंग द हंटिंग स्किल्स, दे वर नॉट कंप्लीटली डिपेंडेंट अपॉन द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स। ठीक है, क्लियर है ऑनलाइन? Yes, sir. हाँ, क्योंकि लाइंस कभी कभी पूरी तरीके से एलिबोरेट नहीं की गई हैं, तो जब और डीपर स्टडी करोगे, कभी आपको टाइम मिलेगा, जिसका हिस्ट्री ऑप्शनल होगा, वो उनको स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि थोड़ा सा माइनर डिफरेंसेस है। ठीक है, जैसे हमने जब शुरुआत में पढ़ा तो हमने केवल हंटिंग स्किल्स की बात करी, लेकिन मैंने आपको लिखवाया ना कि देवर सम आल्सो प्रूफ दैट दे वर ईटिंग द फ्लैश ऑफ डेड एनिमल्स आल्सो। ठीक है, तो कई फैक्ट्स नहीं दिए होंगे एनसीईआरटी में, इसलिए तो क्लास चल रही है, वरना एनसीईआरटी पढ़ लेते। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए कई फैक्ट्स हैं जो एलिबरेटेड वर्जन होंगे उनके, तो आपने एनसीईआरटी में कहीं नहीं पढ़ोगे आपकी दे वर डिपेंडेंट अपॉन द डेड, द फ्लैश ऑफ डेड एनिमल्स आल्सो। लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट ने फाइंड किया है कि दैट इज द फैक्ट दैट दे वर आल्सो दे, बिकॉज दे वर द फाइंडिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंटरप्रिटेशन वाज मेड कि उन्होंने डेड एनिमल्स का फ्लैश भी खाया। ठीक है, हाँ, ये नहीं पता था कि उन्होंने जो जो डेड एनिमल्स थे वो एक्चुअल में कि अपने आप मरे थे, या जो रिमेन्स थे, जैसे शेर ने खाया और बचा तो उन्होंने खाया। ठीक है, तो रिमेन्स भी हो सकते हैं, तो इसके लिए वो श्योर नहीं है। ठीक है, क्लियर है? चलो नेक्स्ट पॉइंट नोट करना, पेंटिंग्स। अच्छा, इसमें नोट थोड़ा सा, एक पहले छोटा सा कहीं नोट बना लो कि बागौर राजस्थान, बगौर राजस्थान अर्लीस्ट एविडेंसेस ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। बगौर, हाँ, बगौर राजस्थान अर्लीस्ट एविडेंसेस ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स एंड ऑफ मेसोलिथिक एज। ठीक है, मेसोलिथिक एज। नाउ पेंटिंग्स, paintings were found at rock shelters. Paintings were found at rock shelters. The use of bow and arrows. The use of bow and arrows. Underline that. The use of bow and arrows depict in the rock painting. In the rock painting, so what you can interpret? The use of bow and arrow. तो अब क्या हुआ? हंटिंग स्किल्स इंप्रूव हुई, है ना? तो इंप्रोवाइजेशन इज हंटिंग स्किल्स। नेक्स्ट पॉइंट, paintings are generally executed in red ochre, red ochre, comma, but sometimes, comma, but sometimes bluish green,
yellow white colors also had been used, also had been used. So what do you think that from where they get they get these colors? वो लोग कहाँ से मिले होंगे, कलर्स कहाँ से लेके आए होंगे, कहाँ से परचेज किया होगा? प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। तो प्लांट्स एंड एनिमल्स के पिगमेंट्स यूज किए थे, ठीक है। और जो वॉल्स थी, तो वॉल्स में स्मॉल स्मॉल छोटे छोटे पोरस होल्स होते हैं ना, जैसे केव्स की वॉल हो गई ना, तो पॉलिश्ड वॉल्स नहीं होती ना, कैसे होते हैं? पोरस होते हैं ना, खुरदुरे से होते हैं वॉल्स। तो जब खुरदुरे होंगे ना, तो उसमें क्या होगा, जब आप पेंट करोगे ना, तो उसमें पेंट क्या होगा, एनग्रेव हो जाएगा, है ना। तो जो पिगमेंट्स, जो थिक पिगमेंट्स थे ना, तो वो उन पोर्स में फंसे, तो जो पेंटिंग जो बनी ना, तो लॉन्ग लास्टिंग पेंटिंग इसीलिए बनी क्योंकि वो जो कलर्स थे वो एनक्रिप्ट हुए उसमें। अगर पॉलिश्ड होता तो शायद वो ऑब्सोलीट हो जाता, पेरिशेबल होता, ठीक है। तो जो एनग्रेविंग थी उसके अंदर स्टोन्स, जो केव्स थी, जो स्टोन्स थे वो दे वर नॉट पॉलिश्ड, ठीक है। और जो कलर्स थे वो हमें कहाँ से मिले, एनिमल्स थे, प्लांट्स से, पिगमेंट्स से, ठीक है। तो स्पिट वर ऑल्सो यूज्ड ऑफ एनिमल्स, ठीक है, टू मेक इट थिक, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, rhinoceros hunting is also depicted. Rhinoceros hunting is also depicted in caves of in caves of Adamgarh, UP. Adamgarh, Uttar Pradesh. Adamgarh, UP. And next point, the first rock painting in India, the first rock painting in India were discovered at Sohagi Ghat, Sohagi Ghat caves, Sohagi Ghat caves in bracket Mirzapur, Uttar Pradesh, ठीक है। ईयर 86 1867 है, बट देयर इज नो नीड टू नोट इट डाउन, ठीक है। तो सोहागी गेट केव्स, ये कैमूर हिल्स पढ़ा है ज्योग्राफी में कहीं, कैमूर हिल्स, हाँ, तो कैमूर हिल्स के बॉर्डर पे है, ठीक है, मिर्जापुर, हाँ, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट नोट डाउन, approximately 29 types of animals, 29 types of animals are depicted, including cheetah, cheetah, tiger, panther, squirrel, scorpion, etc. Next, भीमबेटका पेंटिंग्स reflect division of labor, Bhimbedka paintings reflect division of labor based on gender. तो कैसे पता चला? एक आर्ट बनाई ना मेन टाइप की, जिसमें मेन दिख रहा होता है, और विमेन के लिए कुछ स्पेसिफाइड सिंबॉलिक पिक्चर बनाया, और अब उन दोनों को अलग अलग काम करते हुए दिखाया, ठीक है। तो नोट डाउन इन ब्रैकेट, men depicted hunting,
men depicted hunting, while women are painted gathering and preparing food, bracket close. Now next, food. Put the small heading, food. Last phase of, first point, last phase of this age saw, last phase of this age saw beginning of plant cultivation, and it coincided with the age of Neolithic. Now, full stop, now coincided with Neolithic age. Now, men largely doing hunting, food gathering, but started fishing also. Right? Now, next, tools. This age reflects the tools, reflect the tools which are called as microliths. Means small tools. These tools are, full stop, these tools are miniature version, of the same tools used in Upper Paleolithic age, such as blades, burins, scrapers, points, blades, burins, B-U-R-I-N-S, blades, burins, scrapers, points, etc., with more sharpness. ठीक है, तो टूल्स कैसे होते गए, साइज में छोटे होते गए और मोर शार्प होते गए. ठीक है, दैट इज इट्स कॉल्ड माइक्रोलिथ एज. ठीक है, नाउ कमिंग टू द पॉटरी. ठीक है, तो नया क्या आया, पॉटरी. ठीक है, pottery reported from a number of excavated sites. Pottery reported from
number of excavated sites like Bagor. Where is Bagor? Very good. Bagor, Rajasthan, comma, Nagarjun Konda, Nagarjun Konda, Nagarjun Konda, Andhra Pradesh. Chopani Mando, Chopani Mando, again Belan Valley, UP. Langanj, LAN, Lan, Langanj, Langanj, Gujarat. Full stop. Next point. Pottery was wholly handmade. Underline that. Wholly handmade. ठीक है, तो अब यहाँ ध्यान रखना कि जो अंडरलाइन करवाया है उसका कोई सिग्निफिकेंट है. दैट इज होली हैंडमेड. इट मींस पॉटर व्हील स्टिल नॉट इन्वेंटेड. ठीक है, अभी पॉटर व्हील का यूज नहीं होगा. जो पॉटर व्हील देखते हैं ना जिससे बनता है, तो पॉटर व्हील कब आएगा? न्यूलिथिक पीरियड में. और ये जो पॉटरी है दैट इज कंप्लीटली रफ एंड मेड अप ऑफ मड ओनली. ठीक है, तो कोई भी मेटल यूज नहीं हुआ है, बिल्कुल भी पॉलिश नहीं है. देयर इज नो पेंट. पेंट जब हम पढ़ेंगे ना, पेंटेड ग्रे वेयर्स. ठीक है, इट मीन पेंटिंग की गई. अभी कैसा है पॉटरी? बिल्कुल मड का बना हुआ है, सिंपल हाथ से बनाया हुआ. ठीक है, नोट डाउन. Pottery was wholly handmade and usually coarse gray, made up of clay and mud. But sometimes डिजाइंड ऑल्सो. ठीक है, डिजाइंड मिलेंगे, लेकिन वैसे डिजाइन नहीं जैसे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि होनी चाहिए पोल्ट्री पे. ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट द मेसोलिथिक पीरियड. ठीक है, तो उनके हिसाब से जो डिजाइन रही होगी वैसे. ठीक है, स्मॉल लाइंस होंगी केवल उस पर. ठीक है, तो उनके हिसाब से डिजाइन हो गई. ठीक है, नाउ note down here also that kitchen tools were also found. Kitchen tools were also found ठीक है, तो फुल स्टॉप. नाउ मेड स्टार नोट. ठीक है, बरियल्स. तो मेसोलिथिक पीरियड से हमको बरियल्स क्या है? अभी तक हमने बरियल्स की बात की थी नहीं. ठीक है, हमने केवल हमें बोन्स टूल्स मिले हैं, लेकिन बरियल्स का मतलब है कि उनको बरी किया गया हो इंटेंशनली, है ना, प्रॉपर फॉर्म में. ठीक है, तो बरियल्स, नोट डाउन. बरियल्स evidences also found burials evidences also found in Damdama. प्रतापगढ़, यूपी. ठीक है, दमदमा के साथ एक और साइट है यहाँ पर, एक प्रतापगढ़ के पास है, तो ये भी नोट कर लो, महादहा. ठीक है, सेम प्रतापगढ़ में ही है महादहा. ठीक है, तो कहीं साथ में मिलेगा, कभी हो सकता है महादहा ही मिल जाए दोनों. तो दो साइट्स हैं, दमदमा और महादहा, इन प्रतापगढ़
उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो अब देखो क्या है कि ये साइट्स जो है ना, ये आपके रेफरेंस के लिए हैं। साइट्स दो तरह की हैं, एक आपके रेफरेंस के लिए है और एक है जहां पर अर्लीस्ट एविडेंसेस। ठीक है, ओनली साइट, तो वहां पे वो साइट आपको लर्न करनी होगी। बात समझ में आ रही है? लेकिन अब छोटे छोटे जो प्लेसेस हैं जहाँ पे साइट्स मिली हैं, हमने बताया कि यहाँ पे बरियल्स मिले हैं, तो दैट इज द फर्स्ट साइट और द ओनली साइट फॉर द मेसोलिथिक पीरियड वी फाइंड बरियल। तो बरियल अभी से स्टार्ट हुआ है, तो बरियल का स्टार्ट हुआ मेसोलिथिक में, तो एक रेफरेंस पॉइंट है कि हमें एविडेंसेस मिले। कैसे कह सकते हैं बरियल्स मिले? तो रेफरेंस पॉइंट का नेम दिया हुआ है। तो इट्स नॉट नेसेसरी दैट यू हैव टू रिमेंबर ऑल द साइट्स, द साइट्स आर फॉर द रेफरेंस मार्क ओनली। ठीक है, ये हमें कहाँ कहाँ से एविडेंसेस मिले हैं, नॉर्थ इंडिया से मिले कि नहीं, साउथ इंडिया से मिले। तो क्वेश्चन ऐसे जरूर आ सकता है यूपी में, यूपीएससी में, कि नॉर्थ इंडिया से कोई साइट नहीं मिला है, साउथ इंडिया से कोई साइट नहीं मिला है, ठीक है, उत्तर प्रदेश से कोई साइट नहीं मिला है ऐसे। लेकिन इतना स्पेसिफिक, ये जो पीसीएस लेवल के जो एग्जाम होते हैं उसमें स्पेसिफिकली आते हैं ऐसे कि कौन सी साइट किससे बिलोंग करती है। ठीक है, तो लार्जली हम सिग्निफिकेंट की बेसिस पर उसको लर्न करेंगे कि भीमबेटका साइट है। ठीक है, दैट प्रोवाइड द एविडेंसेस ऑफ ऑल द थ्री फेसेस। ठीक है, तो बिलन वैली, ऑल द थ्री फेसेस। ठीक है, फिर हम जब लाहुरा देव के बारे में पढ़ेंगे, अर्लीस्ट साइट ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, तो कोल्डीवा, तो मेहरगढ़, जहां पे स्पेसिफिक हमको एविडेंसेस मिले हैं जो हमको पता होने चाहिए। ठीक है, तो इसलिए वो याद करने, बाकी छोटे छोटे साइट्स है तो इसके लिए डो नॉट बॉदर अबाउट, डो नॉट टेक बर्डन दैट कि इतना सारा सर कैसे याद करेंगे। ऑलराइट, सो चलो आगे देखते हैं कि नाउ विल मूव टुवर्ड्स द नियोलिथिक एज। ओके, सो आगे बढ़ने से पहले एक बार रिवाइज करो, मुझे बताओ क्या क्या नया। यस, व्हाट्स न्यू वी फाउंड इन मेसोलिथिक? बोन एंड एरो, किचन टूल्स, पेंटिंग्स, pottery, और on the large basis domestication of animals। ठीक है, what else? कुछ और दिखा? Burials. हाँ, Burials. यस, बरियल्स के लास्ट फेज में और बरियल्स के अर्ली एविडेंसेस मिले हमको। समझ में आया? तो कैसे पैलियोलिथिक से अब हम मेसोलिथिक में आए, वो में क्या न्यू चेंजेस, कहीं बना के रख लेना शॉर्ट में अपने पास, जब प्री के नोट्स बनाओगे ना ऐसे ही, कि हमें क्या न्यू चेंजेस मिले, क्या लास्ट फेज में एविडेंसेस मिले, और लार्जली किस बेसिस पे क्या हुआ। ठीक है, तो पॉटरी के हमें लास्ट एविडेंसेस कहाँ मिले, कौन से एज में? पेंटिंग्स के हमें स्टार्टिंग में कहाँ मिला? मेसोलिथिक में। ठीक है, पॉटरी के, हाँ, लास्ट पेज। तो पहले जो मेसोलिथिक है दैट इज, देखो मेसोलिथिक का अभी जो फेज है ये पॉटरी में लास्ट एविडेंस, और न्यूलिथिक में वाइड स्केल पे और मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो न्यूलिथिक। ओके, तो अभी तक पेलियो में मेन की स्किल्स क्या थी रिगार्डिंग द एनिमल्स एंड प्लांट्स? हंटिंग एंड गैदरिंग। मेसोलिथिक में क्या हुआ? हंटिंग एंड हर्डरस ऑल्सो, है ना, डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हुआ। ठीक है, प्लांट कल्टीवेशन नहीं कह सकते क्योंकि लार्ज बेसिस पे नहीं था, है ना, कुछ एविडेंस स्टार्ट हुआ वहां से। फिर न्यूलिथिक में क्या होगा? आप Agriculture. एग्रीकल्चर मींस फूड प्रोड्यूसर। ठीक है, फूड प्रोड्यूसर स्टार्ट। हाँ, यस, नेक्स्ट नोट डाउन न्यूलिथिक एज। वी गॉर्डन चाइल्ड, वी डॉट v dot Gordon child term, CHILDE है, याद रखना। v Gordon child termed Neolithic phase as Neolithic revolution. And the term Neolithic is derived from the Greek term, and the term Neolithic is derived from Greek term neo, means new, and again lithic means stones. And again all these terms like Paleolithic, Mesolithic, Neolithic also given by John Lubbock. ठीक है, so the term Neolithic, the
The term Neolithic also first coined by जॉन ल्यूबेक. मैं कल लिखवा चुका हूं ना, जॉन ल्यूबेक. एक्चुअली जॉन ल्यूबेक ने कैटेगराइज किया था पेलियोलिथिक और न्यूलिथिक एजेस को. ठीक है. First point, in this age, men started agriculture. Men started agriculture. Comma, pottery on wild scale. Pottery on wild scale. Pottery on wide scale, comma, settled lifestyle, underline that, settled lifestyle, comma, small villages, very small villages, small villages. Invention of potter's wheel. And more polished stone, and more polished stone. Now, note down, first point, Mehergarh, Mehergarh Mehergarh in Baluchistan, Pakistan, is largest and oldest Neolithic site. In this site, we find rectangular and circular houses. Underline that, rectangular and circular houses made up of mud bricks. Underline that, mud bricks, and do not confused with the burnt bricks. Okay, burnt bricks are different than mud bricks. ठीक है, इनको धूप में सुखाया जाता है और उनको फायर से पकाते हैं. ठीक है, तो बर्न्ड ब्रिक्स के अर्लीस्ट एविडेंसेस हमें कहां मिलेंगे? आईवीसी में. चाल्कोलिथिक also use these mud bricks. ठीक है. नाउ हाँ, यस, बेक्ड ब्रिक्स, दे आर बर्न्ड ब्रिक्स, जिनको बेकिंग करते हैं. ठीक है. नाउ mud bricks, in bracket note down, while other places of Neolithic age we find mud houses only. तो न्यूलिथिक की जो बाकी साइट्स थी वहां पे कैसे घर थे? मड हाउसेस, मिट्टी के बने थे. मिट्टी के बने घर और मिट्टी की ईंटों के बने घर, डिफरेंस समझ में आ रहा है? तो मिट्टी के बने घर बाकी सारे प्लेसेस पे, और मेहरगढ़ में मिट्टी की ईंटों के बने घर. ठीक है, तो ये था यूनिकनेस ऑफ मेहरगढ़ साइट. नेक्स्ट, व्हीट एंड बार्ले. इसी में मेहरगढ़ साइट में व्हीट एंड बार्ले were found in this site, in bracket, while on other sites rice ragi were found. Rice ragi grams were found. Granaries were also found.
proof of cotton, proof of cotton cultivation, comma, sheep's and goat domestication, sheep's and goats and cattle domestication, cattle भी ऐड कर लो, ठीक है। देखो एक छोटा सा क्विक रिव्यू देखते हैं, साइट्स कैसी दिखती हैं, है ना। जैसे मेहरगढ़ बलूचिस्तान साइट, तो इस देखो रेउंस कितने, कैसे रेउंस की बेसिस पे देखा ना आपने कैसे रेउंस थे, ठीक है। तो अब ये जो रेउंस हैं ये कितने वल्नरेबल होते हैं, ठीक है, कैसे कितना क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है आर्कियोलॉजिस्ट को हिस्ट्री क्रिएट करने के लिए, ठीक है। अब एक्सकवेशन का प्रोसेस एक बार देख लो, एग्जाम्पल है छोटा सा, इसकी बेसिस पे आपको समझ में आएगा कि कितना टफ टास्क है हिस्ट्री को क्रिएट करना थ्रू दिस एक्सकेवेशंस, ठीक है। तो एक माइनर रिप्रेजेंटेशन है, बस केवल आपका पर्पस, मेरा पर्पस ये है कि आप ये देखो कि हिस्ट्री कैसे चेंज हो सकती है एक छोटी सी गलती की, ठीक है। तो पूरी प्रोसेस देख लो एक बार, जिससे कि पता चलेगा कि एक हिस्ट्री कोई भी अंडरस्टैंडिंग चेंज कैसे हो सकती है अगर आर्कियोलॉजिस्ट उसको प्रॉपरली एनग्रेव ना करें, एक्सकेवेट ना करें, ठीक है। तो कोई सोनौली साइट अभी 2018 में, ठीक है, यहाँ पे एक्सकेवेशन हुआ था, ठीक है। तो तो ये बिल्कुल माइक्रोलिथ्स यूज करते हैं, ठीक है, लेयर बाय लेयर उसको हटाते हैं, डस्ट को और सॉइल्स के, ठीक है। तो देखो ये कुछ रथ जैसा निकला है वहां पे, तो एविडेंसेस हैं कि शायद जो महाभारत, क्योंकि वो प्लेस आसपास ही है कुरुक्षेत्र का, ठीक है, तो जो वेस्टर्न यूपी है, तो देखो ये प्रिजर्वेशन ऐसे करते हैं, ठीक है, इसको लेकर जाएंगे भी। माइनर प्रोसेस, छोटे छोटे सा बिल्कुल हटाते हैं, एक एक लेयर हटाते हैं, अदरवाइज यू विल लॉस दैट पॉटरी।
ठीक है ना। तो एक ब्रॉडर आइडिया मिला कैसे, कितना माइनर प्रोसेस है उसको ब्रश से उसको साफ करना, तो कितने साल लग जाते हैं एक बड़े सिविलाइजेशन को एक्सकेवेट करने के लिए। ठीक है, तो हो सकता है कोई ऐसा लार्ज प्रूफ हो जिससे पूरा जो अंडरस्टैंडिंग है वो चेंज हो रहा हो, और वो बिकॉज ऑफ द माइनर केयरलेसनेस वी कैन लूज दैट अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो आगे स्टार्ट करते हैं, हमने कहाँ तक किया। हाँ, नाउ बुर्ज होम। ठीक है, और को नेक्स्ट बुर्ज होम। नोट करना, पिट हाउसेस, pit houses were found in Burj Home. Pit houses were found in Burj Home, bracket, near Srinagar, Jammu and Kashmir. And Gufrakal, Jammu and Kashmir. This is also the site where pit houses were found. Also near Jammu and Kashmir, near Srinagar in Jammu and Kashmir. So pit houses were those houses which are digged into the land. ठीक है, जमीन के अंदर छेद करके, ठीक है, आपको लगेगा केवल ढक्कन रखा हुआ, जैसे जो आपने देखा होगा ना कि सड़क पे जो मेन होल्स बने होते हैं, ठीक है, तो वैसे ही एक छोटा सा प्लेस होता है अंदर जाने के लिए, और वो पिट हाउस मीन्स डग्ड हाउस, डिग करके बनाए गए हैं। तो पूरा सेटअप है अंडरग्राउंड, जैसे आपने देखा होगा ना अंडरग्राउंड बेसमेंट में जो रूम्स और हॉल्स स्टोर्स हाउस बने होते हैं, वैसे ही छोटे से घर जमीन के अंदर, और एक छोटा सा एंट्रेंस है, केवल आप जान नहीं पाओगे कि वो पिट हाउसेज है। ठीक है, सो दीज वर फाउंड इन बुर्ज होम एंड गुफरकाल, एंड दिस साइट्स हैव द डेटिंग ऑफ न्यूलिथिक फेज। तो न्यूलिथिक फेज में हमें बुर्ज होम और गुफरकाल में पिट हाउसेज मिले हैं। ठीक है, नोट डाउन नेक्स्ट, cooking hearths were also found, comma, cooking hearths, जैसे मॉडर्न चूल्हे होते हैं ना, अभी गांव में चूल्हे यूज करते हैं, जैसे वैसे कुकिंग hearths were also found. Polished stone tools and bone tools were found. Polished stone tools and bone tools were found. In this site, there's a complete absence of microlith tools. Now next, burials dash Burj Home, burials dash Burj Home is site. Burj Home में कैसे burials मिले हैं? Burj Home dash north and south direction body, comma, bodies in pots were also found. Graves of human and dogs were also found in Burj Home. And in Mehergarh, ये बुर्ज होम का पूरा जो बताया अभी तब था। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट साइड, इन द बरियल्स, मेहरगढ़ बरियल्स, इन बरियल्स नोट डाउन सेकंड, मेहरगढ़ कहाँ बताया था? बलूचिस्तान। ठीक है, तो इन मेहरगढ़ ह्यूमन एंड गोट्स टुगेदर
buried. ठीक है, तो कुछ इस तरह से कैसे हमें जो बरियल्स मिले हैं, ठीक है, ह्यूमन स्केलेटन along with the skeletons of goats, इसका मतलब है साथ में बरी किए गए थे, ठीक है। नेक्स्ट साइट चिरांद, CHIRAND, चिरांद इन पटना। नो, चिरांद केवल चिरांद लिखो साइट, बरियल्स में नहीं, अलग सेपरेट। चिरांद, बोन टूल्स वर फाइंड, बोन टूल्स चिरांद। बोन टूल्स चिरांद, बिहार, ठीक है, जस्ट नियर पटना। नेक्स्ट we'll talk about grains. To put the heading, small heading, grains. तो देखो, अब we know that now the agriculture have been started, the plant and cultivation started. So how did we know that? Because on the basis of the findings of grains. तो पता होना चाहिए grains कहाँ कहाँ से finding है। तो grains की finding note कर लो। grains, लहुरा देव, फर्स्ट लहुरा देव, लहुरा देव नोट कर लो, लहुरा देव, संत कबीर नगर, यूपी। earliest evidences of agriculture. तो अर्लीस्ट एविडेंसेस ऑफ एग्रीकल्चर मींस कुछ तो ग्रीन मिला होगा। तो यहाँ पे जो अर्लीस्ट एविडेंसेस हैं, यानी कि डेटिंग की बेसिस पे हमें कोई ना कोई ग्रीन मिला होगा, तो वो मिला राइस, ठीक है। तो इन ब्रैकेट नोट डाउन राइस, ठीक है, अर्लीस्ट एविडेंसेस ऑफ एग्रीकल्चर इन ब्रैकेट राइस। क्या फाइंडिंग्स थी? राइस, ठीक है। और इसके पहले, ठीक है, आज से 7-8 साल पहले अगर किसी ने एग्जाम दिया होगा तो वहां पे साइट चेंज थी, ठीक है। तो अभी न्यू साइट है लहुरा देव। अर्लीस्ट नोट डाउन, बिफोर दैट साइट, बिफोर दैट इन ब्रैकेट नोट डाउन, बिफोर दैट साइट कोल्ढेवा, कोल्ढेवा, कोल्ढेवा इन ब्रैकेट प्रयागराज उत्तर प्रदेश, प्रयागराज उत्तर प्रदेश was considered as the earliest site or the oldest site. So सबसे पहले हिस्टोरियंस क्या मानते थे? कौन सी साइट थी ओल्डेस्ट? कोल्ढेवा। फिर हमें लोहिरा देव से एविडेंसेस मिले राइस के। सो लोहिरा देव से जब एविडेंसेस मिली तो कौन सी हो गई ओल्डेस्ट? लोहिरा देव। एंड कोल्ढेवा बिकेम द सेकंड ओल्डेस्ट। समझ नहीं बात? ठीक है, तो कोल्ढेवा इज रॉन्ग अगर आप पुरानी बुक कोई पढ़ रहे हो, ठीक है। तो हाँ, कोई डाउट? अच्छा, ठीक। नाउ इसी में नोट करना, मेहरगढ़, मेहरगढ़ डैश earliest evidences of wheat, मेहरगढ़ earliest evidences of wheat। डिफरेंस समझ में आया? हमने अर्लियर जो एविडेंसेस मिले एग्रीकल्चर के, सो कार्बन डेटिंग जब की गई तो पता चला कहाँ का क्या मिला हमको? राइस मिला था। लेकिन वो जो राइस था, वो जो व्हीट, अर्लीस्ट व्हीट मिला है उसके पहले की डेट थी। कोल्ढेवा से भी पहले की डेट थी मेहरगढ़ की, ठीक है। तो मेहरगढ़ में जो व्हीट अगर कहीं मिला है सबसे पहला अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ व्हीट, वो हमें लहुरा देव से नहीं मिला, वो हमें कोल्ढेवा से नहीं मिला, हमें क्या कहां से मिला? मेहरगढ़ से। तो व्हीट के अर्लीस्ट एविडेंस कहां से मिले? मेहरगढ़ से, ठीक है। नेक्स्ट, कोल्ढेवा, कोल्ढेवा, कोल्ढेवा फाइंडिंग्स, कोल्ढेवा फाइंडिंग्स डैश wheat, rice, etc.
wheat, rice, etc. हाँ, अब बात समझ में आई, wheat लिखवाया है मैंने यहाँ पर, लेकिन they were not the earliest. वो कहाँ मिले? मेहरगढ़ में. जो कोल्डीवा से wheat मिले उनकी डेटिंग क्या थी? मेहरगढ़ के बाद की थी. बात समझ में आ रही है ये? तो ऐसा नहीं है कि मिला नहीं, इसलिए लिखवाया साथ में कि wheat और राइस दोनों मिला हमें कहाँ से? मेहरगढ़ से. नेक्स्ट नोट करना, महागरा, MAHAGARA, Mahagara site is also in Uttar Pradesh, Prayagraj. We find here rice, and cattles also. Next, Kirthar and Suleiman Hills. Kirthar and Suleiman Hills. Kirthar and Suleiman Hills. ये कहाँ है? वेरी गुड, पाकिस्तान. वेरी गुड, पाकिस्तान. यहां से हमें क्या मिला? कॉटन एविडेंसेस. अदर साइट्स नोट कर लो इसमें. चौपानी मांडो पहले नोट कर चुके हो, कहां थी? चौपानी मांडो नोट किया था. वेरी गुड, यूपी है ना. देखो पीछे चौपानी मांडो कहीं नोट किया था. तो चौपानी मांडो, अदर साइट्स ऑफ न्यूलिथिक, चौपानी मांडो. प्रयागराज यूपी. असम, इन साउथ नोट करो, साउथ इंडिया, साउथ ऑफ गोदावरी रिवर. नेक्स्ट साइट साउथ में पिकली हाल, कर्नाटका. पिकली हाल, ये मैं सिर्फ मेजर साइट लिखवा रहा हूं, अभी और भी है. पिकली हाल कर्नाटका, इन ब्रैकेट कर्नाटका. डैश पिकली हाल कर्नाटका में हमें क्या मिला? एश माउंट्स, ASH, एश माउंट्स. एश जो राख होती है ना, जले, एश माउंट्स. इन ब्रैकेट नोट डाउन, मे बी द बर्निंग ऑफ काउ डंग्स, मे बी द बर्निंग ऑफ काउ डंग्स. Next point, stones were polished. Stones were polished across the sites. ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं कि मैं कहीं स्पेसिफिक साइट्स के लिखवा रहा हूं. Stones were polished and mortars and pestles. ठीक है, were also found polished stones and mortars and pestles were also found in this age, Neolithic age. Okay, what are mortar and pestles? There were two types of stones which used for grinding purposes. अभी देखते हो ना गाँव में यूज करते हैं ना, हाथों से कुछ पीस निकाला. ठीक है, दो स्टोन्स होते हैं है ना, उन पे यूज करते वही मोटार्स एंड पेसल्स. ठीक है, हाँ. सो नाउ नोट डाउन द, अच्छा एक नोट बना लो, हो सकता है मिल जाए ये पॉइंट कभी भी यूपीएससी के लिए. ऑस्ट्रिच एक्सेल्स. हाँ, ऑस्ट्रिच, एक्सेल्स. ऑस्ट्रिच एक्सेल्स. ठीक है,
इस पे देखो ये एक इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग है और 90s में क्वेश्चन आया था इस पे एक्सेल्स पे, ठीक है। तो एक छोटा सा नोट बना लो, और ये अपर पेलियोलिथिक एज के टाइम पे हमें इसके एविडेंसेस मिले थे एक्सेल्स के, ऑस्ट्रिच के, ठीक है। तो उससे नोट बना लो एक, it was assumed that ostrich may roamed over Asia till the end of, अभी कहाँ मिलते हैं हमको ऑस्ट्रिच? नेटिव प्लेस क्या है पता है? अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, वहीं मिलते हैं ऑस्ट्रिच, ओनली कॉन्टिनेंट जो उनका नेटिव प्लेस है। अब यहाँ जू में जाओगे देखने को मिलेगा, बट इट नॉट दैट नेटिव प्लेस, ठीक है। तो नेटिव प्लेस क्या है? अभी अफ्रीका है, ठीक है। तो इट वॉज एज्यूम्ड दैट ऑस्ट्रिच में रोम्ड ओवर एशिया ऑल्सो, ठीक है, ड्यूरिंग दैट पीरियड टिल द एंड ऑफ, roamed over Asia till the end of Paleolithic age. And may have been hunted for, and may have been hunted for food, and their eggs and their eggs, comma, must also have been eaten, and the eggshells could be used as bowls or containers, देखो ऐसा नहीं था कि जो हम आज एग्स देखते हैं, ऑस्ट्रिच एग्स वर वेरी बिग इन साइज, ठीक, एंड दे वर वेरी हार्ड, यू कैन अज्यूम दैट दे वर ब्रोकन बाय द स्टोन्स, और जो एग्स को यूज कर लेते थे, जो एक्सेल्स को वो बाउल्स या कंटेनर्स की तरह यूज करते थे, दैट वर फाउंड एज एन एविडेंसेस, ठीक है। एक्स कंटेनर्स ऑल्सो, कॉमा, फाउंड इन भीमबेटका, अंडरलाइन दैट, भीमबेटका, वेयर इज भीमबेटका? एमपी, कॉमा, पाटने कहां बताया था? PATNE, वेरी गुड, पाटने, PATNE, महाराष्ट्र, एंड other parts of Rajasthan. And make a short note on the limitations of Stone Age. Limitations of Stone Age. So what were the limitations of Stone Age? अगर देखोगे तो क्या क्या लिमिटेशन थे, वो क्या नहीं कर सकते थे, क्या नहीं करते थे, ठीक है। तो दैट इज लिमिटेशंस। तो पॉइंट बुलेट वाइज नोट करेंगे, ठीक है। तो people had to depend almost of the entire Stone Age. We are talking about the entire Stone Age, ठीक है, be it Paleolithic or Mesolithic or Neolithic. Now people had to depend almost entirely on tools and weapons made up of stone. Underline that, stone. It means metal is absence, ठीक है। Second, they could not find settlement, far away from the hilly areas and valleys. Next point, they could settle only on the slope of hills
slope of hills, comma, in rock shelters, in rock shelters, oblique caves, and the hilly river valley. Next point. Further, even with great efforts, second last point. Okay, they could settle only on the slope of hills, comma, in rock shelters, oblique cave or cave, oblique symbol, ठीक है, oblique लिखना नहीं, oblique symbol, caves and the hilly river valley, full stop. Next point. Further, even with great efforts, they could not produce more than what they needed for their bare subsistence, their bare subsistence. राइट, सो दैट इज ऑल अबाउट स्टोन एज. ठीक है, अब आज कल स्टार्ट करेंगे चालकोलिथिक पीरियड एंड आईवीसी. ठीक है, तो चालकोलिथिक में थोड़ा पैटर्न बता दूंगा कि वहाँ क्या क्या डिफरेंसेस आए, बिकॉज देयर वाज नॉट सो मच डिटेल्स अबाउट द चालकोलिथिक पीरियड, दो दे आर हैव सम डिफरेंट लाइफस्टाइल पैटर्न इंट्रोड्यूस्ड इन द चालकोलिथिक पीरियड बिकॉज इट इज पैरेलल टू द आईवीसी. ठीक है, तो आईवीसी का जो हड़प्पन कल्चर है, तो हमें वो रीजन पता है हमें कहाँ पर है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और गुजरात राजस्थान का एरिया, तो वहीं से पैरेलली अटैच है जो राजस्थान का और गुजरात का और एमपी और महाराष्ट्र का एरिया है, दैट इज कॉल्ड एज द चालकोलिथिक कल्चर. तो अलग अलग कल्चर, कायत कल्चर, अरेवा कल्चर, सब हमें कल्चर हम कल पढ़ेंगे और देखेंगे कि क्या इनका रिलेशन था कुछ हड़प्पन कल्चर से कि नहीं था. ठीक है, और साथ साथ में हड़प्पन कल्चर भी स्टार्ट होगा. ठीक है, बट रिमेंबर दैट स्टार्ट करने से पहले क्लास को एक बार आप लोगों को ये बताना होगा मिलके कि पेलियोलिथिक से मेसोलिथिक में क्या डिफरेंसेस हुए और मेसोलिथिक से न्यूलिथिक में क्या डिफरेंसेस हुए. तो आपने एग्रीकल्चर पढ़ा, तो आप ये मत समझ लेना कि एग्रीकल्चर का मतलब है एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गया, एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया. तो मैंने बताया ना लिमिटेशन क्या थी, लिमिटेशन सिर्फ यही थी कि दे वर प्रोड्यूसिंग जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ देयर बेयर सब्सिस्टेंस, और बहुत ज्यादा वैरायटी ऑफ फूड नहीं था, राइस, व्हीट, बार्ली, ये सब स्टार्ट था, तो लिमिटेड फूड प्रोड्यूस करते थे और अपने खाने के लिए यूज करते थे. देयर वाज नो एक्सपोर्ट, देयर वाज नो ट्रेड फाउंड बिटवीन द न्यूलिथिक पीरियड एंड अदर कल्चर्स. ठीक है, हाँ, चालकोलिथिक जब पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि क्या ट्रेड होता था चालकोलिथिक लोगों का. ठीक है, या कोई पॉसिबिलिटी, डायरेक्ट ट्रेड की हमें पॉसिबिलिटी नहीं मिली क्योंकि कॉइन नहीं थे, बार्टर सिस्टम था, लेकिन हाँ, क्या अगर आपको लगता है कि ऐसे मेटल्स या ऐसे रिसोर्सेज जो हड़प्पन कल्चर में नहीं थे और वो कहीं से बाहर से आए थे, तो वो कहाँ से आए थे, तो हमको पता चलेगा कि ट्रेड रहा होगा. ठीक है, क्योंकि वो मेटल्स मिले हमको, तो कल डिस्कस करेंगे थोड़ा सा, और जितना आज हो गया है आई विल एक्सपेक्ट दैट कि आप सब एनसीईआरटी से करके आएंगे उसको. ठीक है, और आज का जो है वो फिनिश हो गया, तो उसको रिवीजन कर लेना. थैंक यू सो मच. थैंक यू ऑनलाइन.